Yeah, hello dear friends. We have a very senior academician with us, Professor Dharmendra Singh. He is the director of Triple IT Vadodara. We welcome you, Professor Dharmendra, in today's. Thank you very much for invitation, and thank you for the giving opportunity to speak something my experience in this great forum. In Triple IT, sir, we are aware that people as an engineering mindset are going over there, but there are also a entrepreneurial mindset. What are the initiatives which has been taken under for that part? So nowadays scenario is totally changed. Earlier in techno part, earlier people were talking about the government job, this job, but now the maximum students they want some entrepreneurship, and then the Institute is a platform where they have to give how you can think big, how differently you can think, how out of box you can think, and then the implementation part. So once I am saying the implementation part, then the two things are very important: the funds and your sincerity. So Institute are seeing that how sincere you are, and then we are providing a platform. Okay, up to the TRL level 3 or 4 you can come to this, and then we will support. And nowadays all over the India a lot of platforms are there. So if you are in the nutshell, if you are really sincere, you don't have a problem for fund, you don't have problem for the market. Yeah, that is the thing. In the edtech space, already it's a very big terminology, but now when we talk about artificial intelligence, is it really going to be a game changer, sir? How do you see? So in a universe, it is like a sine wave, sinusoidal wave. So ups and downs are going on. And then the technocrats and the market leaders, they are keep watching what the ups and downs are going on. This is a very, very critical time where all the policymakers, we have to think, while just after seeing the Iran war and all other things, how much technology we have to adopt. That is our job, the key person's job. So I think that AI is an amplifier, and it can be used as an amplifier, but it cannot use for your basic needs. Input you have to give. So that is the thing. Without input, no amplification will be there. So we have to teach, we have to educate the people that you should be in the input part, not the output part. And nowadays people are doing reverse. They are just seeing the output, not the input, what is going on. Yeah. In terms of teaching, learning, and employability, sir, what are the initiatives of employability? Do alumni also play an important role in this? सबसे पहली चीज़ कि द फॉर नॉलेज, हमारे यहाँ कहा गया है गीता में, कर्मणेव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. नॉलेज जो है, एम्प्लॉयबिलिटी तो बाद में, बहुत दूर बाद आती है. आपने सड़क पर भीख मांगते हुए सबको नहीं देखा है. डोंट मेक ए सो मच प्रेशर. उस एज में पहले उनको नॉलेज गेन करने दीजिए. इसके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है. 1 साल 2 साल के बाद उनको अगर नॉलेज है, व्हाट आई हैव सीन इन माय लास्ट 30-40 year experience, I was a professor in IIT Roorkee and heading the computer department also. I have seen that there is no problem of employability. लेकिन अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो जो हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तब तो हम लीडर नहीं बन पाएंगे. तो सब लोग दौड़ रहे हैं. I don't think that this is a good question to ask. Employability is there. You gain the knowledge automatically. 2004 तक जब कैंपस इंटरव्यू नहीं हुआ करता था, तब भी सब लोग को जॉब मिलती थी. तो हम वो नॉलेज हम देखा, हमने, मैं जब वंस आई ज्वाइन द IIT Roorkee, I saw that कि then that platform was to enhance the knowledge, enhance their adoption, all these things. अब कोई सोचता ही नहीं कितना पैकेज पाए, क्या करोगे पैकेज लेके, सोने का बिस्किट तो खाना नहीं है. So that is the thing. First knowledge and then you think about employability. When time comes, gradually you will grasp when you have that thing. What about... ऐसा ना हो कि क्या बरखा जब कृषि सुखाने, कि ऐसा टाइम ना हो कि पूरा खत्म ही हो जाए. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट वन. यस. So in terms of that, sir, alumni और corporate culture का कितना important role है किसी institution के लिए? देखिए, जो समाज है ना, समाज में हर का रोल फिक्स है. घर का रोल, फ्रेंड्स का रोल. कॉर्पोरेट वर्ड हम जानते ही नहीं थे जब हम पढ़ते थे. 1990s में कोई कॉर्पोरेट वर्ड नहीं जानता था. पढ़ करके यहाँ पहुँच गए, 26 कंट्री टहल लिया, सब कुछ कर लिया, नॉट नोइंग व्हाट इज़ द कॉर्पोरेट.
कुछ नहीं, जो समाज, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति एकदम अलग तरह से पली बढ़ी है। और हम जब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं थैंक्स कहता हूँ कि IKS इंडिया नॉलेज सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, हम उस पद्धति पे आए और सभी, जैसे हमने कहा ना कि आप सांस ले रहे हो, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सभी तरह का, सभी का रोल है। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि पीयर प्रेशर में जो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वो थोड़ा कम रहें और पैम्परिंग थोड़ी कम हो। तो दिस इज़ द थिंग। In terms of sir, teacher training, what are the initiatives you've been taken और कितना important है टीचर ट्रेनिंग का रोल किसी इंस्टीट्यूशन में? टीचर, देखिए अब दो तीन तरह के अब टीचर ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज़ तो आती है कि अगर वो टीचर है या वो डॉक्टर है तो अपने को अपग्रेड रखता है। अदरवाइज़ तो कोई भी कैसा भी टीचर हो, वो जो 60 मिनट क्लास में जाते हैं ना, उसकी पल्पिटेशन बढ़ी होती है कि उस समय वो सब बाहर हीरो बन सकता है, वहाँ वो हीरो नहीं बन पाता, तो अपडेट रहता है। बट ऑल दीज थिंग्स कि क्या चल रहा है, क्या अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी में, क्या अपग्रेडेशन उसकी फील्ड ऑफ रिसर्च में, क्या अपग्रेडेशन सोसाइटी में चल रहा है। सो टाइम टू टाइम गो फॉर द कॉन्फ्रेंस, शॉर्ट मीटिंग्स, दिस दैट मीटिंग, इट इज़ रियली हेल्पफुल। जो आप 100 किताब नहीं पढ़ के कर सकते, वो एक दिन की मीटिंग में यू कैन गेन दैट वन, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। In the forum like this, sir, ARDRCOM Leadership Summit and Award, where we see representation from KG to PG are there, academicians, then corporate, and even the government. How does it such kind of amalgamation help for a society or community? फॉलो अप नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कोई फॉलो अप नहीं करता। देयरफॉर आई केम हियर, बट आई एम वेरी ब्लंट टू से दैट देयर इज़ नो फॉलो अप। कोई स्कूल का टीचर नहीं आता। हमने तो अभी दीव, हमारा कैंपस दीव में भी है, दमन दीव वाला दीव में भी है, हमने 14 स्कूल्स को गोद ले रखा है। बिकॉज हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं। अगर हम उनको ट्रेन नहीं करेंगे, हम उनके टीचर्स को मैच नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो फॉलो अप एकदम नहीं है। तो आप जैसे आप करा रहे हो, देन एटलीस्ट 3 या 4 पर्सनस को आप पकड़ के रखिए, उनकी मीटिंग कराइए, उनको इंटरेक्शन कराइए, तब ये मीटिंग हो गया, ख़त्म हो गया। देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट। कोई फॉलो अप नहीं हो रहा, कोई सुन नहीं रहा है। सबको लगता है तो पढ़ लेंगे, बट आई डोंट नो कहाँ पढ़ के जाएंगे, आई डोंट नो। क्या सॉल्यूशन क्या है सर? व्हाट इज़ द वे आउट व्हेन वी सी कि सच एन गैप? नहीं, पहले भी था। हमने तो पूरी ज़िंदगी एक कॉन्फ्रेंसेज और ये अटेंड करके ही वो सीखा है। तो पहले क्या था कि जो ऑर्गेनाइज़र है वो फॉलो अप कराता था। अब आप अपनी एक टीम बनाइए कि सर आपको एक मीटिंग है, यहाँ बुला रहे हैं, यहाँ जाइए, स्कूल में बच्चों को दीजिए, बच्चों के स्कूल चले आइए, ये आप करें तो इसका इफेक्ट आपको 5 साल बाद दिखेगा। जस्ट बिगिनिंग जस्ट इन टुडे। शाम को सब लोग अपने अपने घर में गए, सो गए, भूल गए सुबह कौन आया तो कौन गया था। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी पिटी। इसलिए बहुत सारे प्रोग्राम का सक्सेस जो है वो घटता जा रहा है। That is very good, sir. So, what are the new entrepreneur programs in your campuses, जिसको हम लोग पार्ट टाइम प्रोग्राम्स भी कहते हैं? वैसे क्या से इनिशिएटिव्स हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में मैंडेट है कि यू हैव टू टीच, यू हैव टू गिव एजुकेशन टू स्टूडेंट टू मेक द बिकम ए टेक्नोक्रेट्स। दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल पार्ट। अब हम लोग उनको टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ द बेसिक। उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करके कैसे मार्केट में लाना है, कैसे टेक्नोलॉजी करना है, ये हमारा काम है। और हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स, लैब को थोड़ा चेंज कर दिया। तो दैट थिंग्स आर गोइंग ऑन। आई थिंक दैट इट इज़ गोइंग इन ए वेरी गुड वे, गुड डायरेक्शन। यस। Dharmendra sir, I am very pleased to share that कि ARDRCOM is just a 4-year-old organization, and from it's a 4-year-old baby. We are in a digital media space. We are doing pretty well. Any message would you like to share with us, or any good wishes would you like to share with us? Always. कोई भी टेक्नोलॉजी कोई भी आता है, माई गुड विशेस इज ऑलवेज विद देम। देयरफॉर आई एम हियर। अदरवाइज मुझे पता है कि इस प्रोग्राम के बाद ना आप मुझे कहीं पूछने वाले हो और ना कोई पूछने वाला है। लेकिन आपको इनकरेज करना है, इसलिए मैं यहाँ हूँ कि आप एक अच्छे कॉज के लिए आए हो। आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नॉट रेड अ लॉट अबाउट दिस कंपनी एंड ऑल, बट आप एक अच्छे कॉज के लिए आए हो। लेकिन नट सेल में जो मेरी फीलिंग है, गट फीलिंग है कि आप कुछ एक कोर ग्रुप बना के, भले ही थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बाद में कहीं ना कहीं पे कर जाता है, और वही आपको अलग ले जाएगा। तो आप उस तरह से थोड़ा सा बना करके स्कूल का ये वो करके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हैं उनकी मैच्योरिटी लेवल उस लेवल की नहीं है, या उतना वो ट्रेवल नहीं किए हैं। दे आर जस्ट इनसाइड द बॉक्स, दे आर सीइंग दैट।
तो उनको थोड़ा सा आउटरीच उनकी बढ़ानी है. दैट्स गुड. Thank you for your suggestions and feedback, sir. Yeah, thank you, sir.